Hello and welcome to today's session of chapter Money. In this chapter, we shall study about central bank, its meaning, functions of central bank, instruments of credit control, and money creation by commercial banks. First of all, meaning of central bank. Central bank is an apex body that controls, operates, regulates, and directs the entire banking and monetary structure of the country. It is known as the apex body as it occupies the topmost position in the monetary and banking system of the country. All the financially developed countries have their central bank. India's central bank is the Reserve Bank of India. It was established in April 1st, 1935 under the Reserve Bank of India Act passed in 1934. तो सबसे पहले इसमें हमने सेंट्रल बैंक का मीनिंग करना है कि सेंट्रल बैंक एपेक्स मतलब हाईएस्ट या सुप्रीम इंस्टीट्यूशन होता है जो किसी भी कंट्री के बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, उसको ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है और उसको डायरेक्शंस देता है। ये हाईएस्ट बॉडी होता है किसी भी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम में, मॉनेटरी सिस्टम में। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसको हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जो कि आरबीआई एक्ट पास हुआ था 1934 में। नाउ फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक: करेंसी अथॉरिटी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, lender of the last resort, custodian of foreign exchange, clearinghouse function, control of credit, currency authority. Now, functions of central bank. First, currency authority or issue of currency. Central bank has the sole authority of issue of currency in the country. In India, Reserve Bank of India has the sole right of issuing paper currency notes, except 1 rupee notes and coins which are issued by Ministry of Finance. All the currency issued by the central bank is its monetary liability. That is, central bank is obliged to back the currency with assets of equal value to enhance the public confidence in paper currency. Assets usually consist of gold coins, gold bullions, foreign securities, and domestic governments' local currency securities. Advantages of sole authority of note issue with RBI. First, it leads to uniformity in note circulation. Second, it gives central bank power to influence money supply because currency with public is a part of money supply. Third, it enables the government to have supervision and control over the central bank with respect to issue of notes. It ensures public faith in the currency system. Fifth, it helps in stabilization of internal and external value of currency. इस पॉइंट में आपको बताया है कि सेंट्रल बैंक के पास सोल मीन्स अकेले मोनोपोली होती है नोट्स को इशू करने की। कोई और बैंक नोट्स को इशू नहीं कर सकता। जो 1 रुपये का नोट है और कॉइन्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करते हैं और बाकी जितनी भी करेंसी है वो सेंट्रल बैंक इशू करता है। इसके बाद आपने बताना है कि क्या एडवांटेजेस हैं सेंट्रल बैंक के नोट इशू करने के लिए।
पहली आपने एडवांटेज बतानी है कि जो सेंट्रल बैंक नोट्स को इशू करता है इसके पास मोनोपोली पावर होती है, तो जो नोट्स होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। दूसरी बात बतानी है कि सेंट्रल बैंक करेंसी को इसलिए भी इशू करता है क्योंकि वो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि जो करेंसी है वो पब्लिक के पास है और वो मनी सप्लाई का पार्ट है। थर्ड पॉइंट आप बताएंगे कि जब सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इशू करता है तो वो उसके ऊपर सुपरविजन करता है और सेंट्रल बैंक का कंट्रोल होता है कि जितने भी उसने नोट्स इशू करे हैं। फोर्थ पॉइंट आप बताएंगे कि सेंट्रल बैंक जब करेंसी को इशू करता है तो लोगों का विश्वास सेंट्रल बैंक के ऊपर जमता है, क्योंकि उनको पता है ये गवर्नमेंट का बैंक है। फिफ्थ पॉइंट में आप बताएंगे कि सेंट्रल बैंक जब करेंसी को इशू करता है तो उसे इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू जो करेंसी की है वो स्टेबल रहती है। सेकंड फंक्शन, बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर, agent and financial advisor to the government. As a banker to the government, it manages accounts of the government. As an agent to the government, it buys and sells securities on behalf of the government. As an advisor to the government, it frames policies to regulate the money market. Banker to the government function में आपने बताना है कि जो सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई है, इसकी पब्लिक डीलिंग नहीं होती, ये सरकार का बैंक होता है, सरकार का एजेंट होता है और उसका फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है। बैंकर के रूप में ये सरकार के अकाउंट्स को मैनेज करता है। अकाउंट्स को मैनेज करने का अर्थ है कि गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और लोन्स देता है, गवर्नमेंट को ही देता है। और एजेंट के रूप में ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को परचेज करता है और उसको सेल करता है, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बन के उसके बिहाफ पर। एडवाइज़र के रूप में ये गवर्नमेंट को सलाह देता है, पॉलिसीज़ फ्रेम करता है मनी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। थर्ड पॉइंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। एज अ बैंकर्स बैंक, it has almost the same relation with other banks in the country as a commercial bank has with its customers. The central bank accepts deposits from the commercial banks and offer them loans. The central bank provides clearinghouse facility to the commercial banks. It is a check clearing facility provided at one center to all the banks. In its supervisory role, the central bank ensures that the commercial banks show compliance to its directives, particularly relating to CRR and SLR. The central bank changes CRR, SLR as and when required. इस पॉइंट में आप बताएंगे कि जो सेंट्रल बैंक है उसका रोल है कि जितने भी देश में बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हैं, वो सारे बैंकों का बैंक है और उनको सुपरवाइज करता है। सेंट्रल बैंक के बैंकों के साथ उसी तरह के रिलेशन होते हैं जिस तरह के बैंक के अपने ग्राहकों के साथ होते हैं, अपने कस्टमर्स के साथ होते हैं। सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और उनको लोन देता है। सेंट्रल बैंक बैंकों को क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी प्रदान करता है। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है कि जिसमें कि जितने भी बैंकों के एक दूसरे के अगेंस्ट क्लेम्स होते हैं, जो चेक्स होते हैं, वो एक सेंटर पॉइंट के ऊपर सेंट्रल बैंक द्वारा क्लियर करे जाते हैं। अपने सुपरवाइजरी रोल में सेंट्रल बैंक ये इंश्योर करता है कि कॉमर्शियल बैंक उसके द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को पालन करें, कंप्लायंस करें, उसको पालन करें और उसके द्वारा दिए गए निर्देशों को जो कि CRR और SLR से संबंधित होते हैं वो उसका पालन करें। जो CRR है और SLR है, इसको जो सेंट्रल बैंक है ये चेंज करता रहता है देश की इकोनॉमी की कंडीशन को देखते हुए। फोर्थ पॉइंट, lenders of the last resort. It means that if a commercial bank fails to get
financial accommodation from anywhere, it approaches the central bank as a last resort. Central bank advances loans to such a bank against approved securities. By offering loans to the commercial banks in situations of emergency, the central bank ensures the banking system of the country does not suffer any setback. The money market remains stable. लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन में आपने बताना है कि अगर कभी किसी भी कमर्शियल बैंक को कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है कहीं पर भी, तो सेंट्रल बैंक उसके लिए एक गारंटर का काम करता है। सेंट्रल बैंक ऐसी परिस्थिति में उसको लोन देता है, जबकि वो जो कमर्शियल बैंक है वो सिक्योरिटीज़ को उसके पास गिरवी रखता है। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक की मदद इसलिए करता है क्योंकि जो देश का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको किसी प्रकार की कोई ठेस ना पहुंचे, कोई सेटबैक ना हो, और जो मनी मार्केट की जो कंडीशन है वो स्टेबल रहे, स्थिर रहे। फिफ्थ पॉइंट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक is the custodian of nations' foreign exchange reserves. It also exercises managed floating to ensure stability of exchange rate in the international money market. Managed floating refers to the sale and purchase of foreign exchange with a view to achieving stability of exchange rate for the domestic currency. फिफ्थ पॉइंट में आप बताएंगे कि जो सेंट्रल बैंक है वो सुरक्षित रखता है फॉरेन एक्सचेंज को। सेंट्रल बैंक के पास जितने भी दूसरे देश होते हैं उनकी करेंसी सुरक्षित होती है, और वो सेंट्रल बैंक ऐसा इसलिए करता है मैनेज्ड फ्लोटिंग के लिए। मैनेज्ड फ्लोटिंग का मतलब होता है कि अपनी करेंसी की वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए इंटरनेशनल मनी मार्केट में जो फॉरेन करेंसीज को बेचा और ख़रीदा जाता है उसको मैनेज्ड फ्लोटिंग कहा जाता है। तो दूसरे करेंसीज को बेचा और ख़रीदा इसलिए जाता है जिससे कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो स्टेबल रह सके। सिक्स्थ पॉइंट, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। सेंट्रल बैंक performs the function of a clearing house. Let us take an example to understand this function. Supposing Bank A receives a check of rupees 10,000 drawn on Bank B, and Bank B receives a check of rupees 15,000 drawn on Bank A. Both banks A and B have their accounts with the central bank. The checks of both the banks are cleared through their accounts with the central bank. This is how the central bank acts as a clearing house. It avoids transfer of cash between the banks and reduces requirements of cash. Clearing house function. Clearing house function का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जिसके द्वारा एक ऐसा स्थान जिसके द्वारा सभी बैंकों के जो चेक हैं वो क्लियर करे जाएं। जो सभी बैंकों के चेक हैं वो क्लियर कौन करता है? सेंट्रल बैंक। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से करेंगे। मान लीजिए बैंक ए के पास एक ऐसा चेक आया है जिसकी राशि 10,000 रुपीज़ है और जो पैसा उसने बी बैंक से लेना है, और बी बैंक ने एक ऐसा चेक रिसीव करा है जिसकी राशि 15,000 रुपये है जो उसने ए बैंक से लेना है। अब इस केस में बैंक ए बैंक बी के साथ या बैंक बी बैंक ए के साथ आपस में कोई लेन देन नहीं करेंगे। जो दोनों बैंक हैं वो अपने जो चेक एक दूसरे से जो उन्होंने लेने हैं वो सेंट्रल बैंक के पास पेश करेंगे, और सेंट्रल बैंक दोनों के जो चेक्स हैं उसको क्लियर कर देगा। ऐसा इसलिए करा जाता है जिससे कि जो कैश की जो ट्रांजैक्शन है वो कम से कम हो। सेवंथ पॉइंट, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द economy. It implies increase
or decrease in the supply of money in the economy by regulating the creation of credit by the commercial banks. The central bank needs to control the supply of money to cope with the situation of inflation and deflation. During inflation, the supply of money is reduced, and during inflation, it is increased. कंट्रोल ऑफ क्रेडिट या क्रेडिट कंट्रोल ये सेंट्रल बैंक का एक मेन फंक्शन है. इसमें सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का भाग ये है कि कब मनी सप्लाई को इंक्रीज करा जाए और कब उसको डिक्रीज करा जाए, जिससे कि जो क्रेडिट क्रिएशन को रेगुलेट करने के लिए कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा. सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इसलिए भी कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के सिचुएशन का सामना करने के लिए. इन्फ्लेशन के समय मनी सप्लाई को रिड्यूस करा जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और उसको इंक्रीज करा जाता है डिफ्लेशन के समय. नाउ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक. फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग. The central bank is the apex bank. It means the bank of all banks in the country. All commercial banks function under the control of central bank. A commercial bank is that financial institution which accepts deposits from the general public and offers loans to the people for purpose of consumption and investment. Central bank पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम का सबसे सुप्रीम या हाईएस्ट बैंक होता है. जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो सेंट्रल बैंक के अंडर काम करते हैं. कॉमर्शियल बैंक जबकि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि आम पब्लिक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और उनको लोन्स देता है, और जो लोन्स हैं वो कंजम्पशन पर्पस के लिए और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए दिए जाते हैं. सेकेंड डिफरेंस, on the basis of nature. The central bank regulates the supply of money besides being the principal source of money supply in the economy. A commercial bank only contributes to the supply of money by way of credit creation. इस पॉइंट में आपने बताना है कि जो सेंट्रल बैंक है वो मेन सोर्स है मनी सप्लाई करने का, कि वो नोट्स को इशू करता है, और जो कमर्शियल बैंक है वो मनी की क्रिएशन करता है, वो नोट्स को इशू नहीं करता. थर्ड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एडिशन. द सेंट्रल बैंक इज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ द कंट्री. इट कंडक्ट्स मैनेज्ड फ्लोटिंग टू रेगुलेट exchange rate of the domestic currency. Whereas a commercial bank is not a custodian of forex reserves of the country, however, it deals in the sale and purchase of foreign exchange for purpose of profit. इस पॉइंट में आपने बताना है कि जो सेंट्रल बैंक है वो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स रखता है और वो मैनेज्ड फ्लोटिंग को भी प्रैक्टिस करता है, जिससे हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को रेगुलेट करा जा सके. जबकि एक जो कमर्शियल बैंक होता है वो कस्टोडियन नहीं होता फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का. वो डील करता है सेल और परचेज फॉरेन करेंसी में प्रॉफिट अर्न करने के लिए. फोर्थ पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी. द सेंट्रल बैंक इज नॉट इशूइंग अथॉरिटी, इट इज अ करेंसी अथॉरिटी ऑफ द country. Whereas a commercial bank is not a note issuing authority, it is not a currency authority. इस पॉइंट में बताया गया कि जो सेंट्रल बैंक है वो नोट्स को इशू करता है और करेंसी अथॉरिटी है देश की, जबकि जो कमर्शियल बैंक है ये नोट्स को इशू नहीं करता और ये करेंसी अथॉरिटी नहीं है. लास्टली, एम. द सेंट्रल बैंक फोकसेस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी. A commercial bank focuses on profit maximization. इस पॉइंट में आपने बताना है कि जो सेंट्रल बैंक है उसका मेन पर्पस होता है, ड्यूल पर्पस होता है ग्रोथ और स्टेबिलिटी, जबकि जो कमर्शियल बैंक है उसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन.
Now our next topic is controller of money supply and credit. Due to the economic fluctuations, the central bank, that is RBI, has the sole monopoly in currency issue. It can control credit and supply of money. For this, RBI makes use of following methods of credit control. कि एक इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस को देखते हुए आरबीआई के पास अकेली अथॉरिटी होती है, सोल अथॉरिटी होती है करेंसी को या क्रेडिट को कंट्रोल करने की। इसके ये मेजर्स हैं। नंबर 1, रेपो रेट। रेपो रेट मीन्स रीपर्चेज रेट। रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री lends money to commercial banks to meet their short-term needs. The central bank advances loans against approved securities or eligible bills of exchange. An increase in repo rate increases the cost of borrowing from the central bank. It forces the commercial bank to increase their lending rates, which discourages borrowers from taking loans. It reduces the ability of commercial banks to create credit. A decrease in the repo rate will have the opposite effect. रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है वो रेट जिसके ऊपर किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो पैसा लेंड करता है, उधार देता है कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए। सेंट्रल बैंक जो लोन्स देता है कॉमर्शियल बैंक को वो कोलेटरल के द्वारा दिए जाते हैं। वो कोलेटरल मतलब वो कोई चीज़ गिरवी रख के दी जाती है, वो होती है सिक्योरिटीज या बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब रेपो रेट को इंक्रीज करा जाता है तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग यानी कि जो लोन्स है, कॉस्ट ऑफ लोन्स हैं वो महंगे हो जाते हैं। वो लोन्स जो कि कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से प्राप्त करने हैं, जिससे कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आगे जो उसने अपने कस्टमर्स को जो लोन्स देने हैं वो उनको महंगा कर देता है। जिस वजह से जो बोरोवर्स हैं लोन महंगा होने की वजह से वो कम लोन लेते हैं, जिससे कि कमर्शियल बैंक्स की जो क्रेडिट क्रिएशन की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार से रेपो रेट को डिक्रीज करा जाता है अपोजिट इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट, बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। बैंक रेट is the rate at which the central bank of a country lends money to commercial banks to meet their long-term needs. RBI has been actively using bank rate to control credit. Bank rate has the same effect as that of repo rate, that is, an increase in bank rate increases the cost of borrowings from the central bank, which leads to increase in lending rates by commercial banks to create credit. बैंक रेट भी वो रेट होता है जो कि जिस रेट के ऊपर किसी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो मनी लोन देता है कॉमर्शियल बैंक्स को, लेकिन लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए। आरबीआई एक्टिवली जो बैंक रेट है उसके द्वारा ये क्रेडिट को कंट्रोल करता है। बैंक रेट का भी ठीक उसी प्रकार से प्रभाव है जैसे कि रेपो रेट का। जब बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि जो आगे कमर्शियल बैंक्स ने जो लोन देने अपने कस्टमर्स को वो महंगे हो जाते हैं। नाउ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर टू बाइंग रेट and selling of government securities by the central bank from to the public and commercial banks. RBI is authorized to sell or purchase treasury bills and government securities. It does not matter whether the securities are bought or sold to the public or banks, because ultimately the amounts will be deposited in or transferred from the
banks from the some banks. ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है कि जब किसी कंट्री का सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर पब्लिक को या कमर्शियल बैंक्स को सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ जो गवर्नमेंट की होती हैं उनको बेचता और ख़रीदता है। ये जो अथॉरिटी है ये आरबीआई को दी जाती है, लेकिन जो आरबीआई है वो सिक्योरिटीज़ को बेचता है और ख़रीदता है ट्रेजरी बिल्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के द्वारा। ये मैटर नहीं करता कि सिक्योरिटीज़ को बेचा और ख़रीदा जाए पब्लिक सेक्टर बैंक से, क्योंकि अल्टीमेटली जो वो अमाउंट है वो सरकार के खाते में ही आता है बैंक्स के द्वारा। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट और वेरिएबल रिजर्व रेशियो। According to the legal reserve requirements, commercial banks are obliged to maintain reserves. It is a very quick and direct method for controlling the credit creating power of commercial banks. Commercial banks are required to maintain reserves on two accounts. First, cash reserve ratio, CRR. It refers to the minimum percentage of net demand and time liabilities to be kept by commercial banks with the central bank. A change in CRR affects the ability of commercial banks to create the credit. For instance, an increase in CRR reduces the excess reserves of commercial banks are required to maintain with themselves. SLR, statutory liquidity ratio. It refers to minimum percentage of net demand and time liabilities which commercial banks are required to maintain with themselves. SLR is maintained in the form of designated liquid assets such as excess reserves, government and other approved securities. Legal reserve requirement. कमर्शियल बैंक को ये मेंटेन करने पड़ते हैं रिजर्व्स, जो कि एक क्विक और डायरेक्ट मेथड है क्रेडिट क्रिएशन पावर का कमर्शियल बैंक्स का। जो ये लीगल रिजर्व्स हैं ये दो तरीके से रखे जाते हैं। फर्स्ट है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो किसी भी कमर्शियल बैंक के टोटल जो नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ हैं, जो टाइम डिपॉजिट्स हैं, उसका रेशो होता है जो कि उसने सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। और कितना रेशो कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक के पास रखना है वो फिक्स भी सेंट्रल बैंक ही करता है। जब सीआरआर को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाता है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि जो कमर्शियल बैंक है उसकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है उसके ऊपर असर पड़ता है। जैसे कि अगर सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, तो बैंक कम लोन्स को क्रिएट करता है, और अगर उसको कम कर दिया जाता है तो वो ज़्यादा लोन्स को क्रिएट कर सकता है। दूसरा मेथड है एसएलआर। एसएलआर का मतलब होता है किसी भी कमर्शियल बैंक का मिनिमम डिपॉजिट उसके नेट डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स का जो उसने खुद अपने पास रखना है, जो उसने वो अमाउंट अपने पास रखना है वो उसने लिक्विड असेट्स के रूप में रखना है, जैसे कि वो एक्सेस रिजर्व्स के रूप में हो सकता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ के रूप में। नाउ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन and market value of the security offered by the borrower against the loan. If the margin fixed by the central bank is 40%, then commercial banks are allowed to give a loan only up to 60% of the value of security. By changing the margin requirements, the Reserve Bank can alter the amount made against securities by the banks. And increasing the margin reduces the borrowing capacity and money supply. A fall in margin encourages the people to borrow more. RBI may prescribe different margins for different type of borrowers against the security of the same commodity. Margin is necessary because if a bank gives a loan equal to the full value of security, then bank will suffer a loss in case of fall in price of security.
मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लोन का मीनिंग होता है कि जब हम बैंक से कोई भी चीज़ लोन लेते हैं तो हमें कोई भी चीज़ बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ती है। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट का अर्थ हुआ कि उस असेट की वैल्यू कितनी है और उसके अगेंस्ट कितना लोन दिया गया है। मान लीजिए अगर सेंट्रल बैंक ने वो मार्जिन रखा है 40%, इसका मतलब यह है कि अगर हमारा असेट 100 रुपये का है तो 40% मार्जिन रखा जाएगा और लोन सिर्फ 60% ही दिए जाएंगे। जब इस मार्जिन को इंक्रीज कर दिया जाता है तो जो बोरिंग कैपेसिटी है या मनी सप्लाई है वो कम हो जाती है। जब मार्जिन को कम कर दिया जाता है तो बोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। आरबीआई अलग अलग तरह के बोरोअर्स के लिए और अलग अलग या किसी भी अलग अलग तरह के बोरोअर्स के लिए अलग अलग मार्जिन्स रखता है एक ही कमोडिटी की। मार्जिन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब बैंक किसी को भी लोन देता है तो वो उसको जो लोन है वो सिक्योरिटी रखी हुई वैल्यू के इक्वल नहीं होता। वो हमेशा लोन उसको कम दिया जाता है कि जो चीज़ की जो वैल्यू होती है वो अधिक होती है। Next is moral suasion. This is a combination of persuasion and pressure that central bank applies on other banks in order to give them act in a manner in line with the policy. Moral suasion is exercised through discussions, letters, speeches, and hints to banks. The Reserve Bank frequently announces its policy position and urges the banks to cooperate in implementing its credit policies. Moral suasion can be used for both quantitative as well as qualitative credit control. Moral suasion ये एक कम्बिनेशन है परसुएशन का, मोटिवेशन का और प्रेशर का, कि सेंट्रल बैंक हमेशा ये चाहता है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कॉमर्शियल बैंक्स को दी जाती हैं डिस्कशन के रूप में, लेटर के रूप में, स्पीच के रूप में या हिंट्स के रूप में। रिजर्व बैंक फ्रीक्वेंटली अपने पॉलिसीज़ को अनाउंस करता रहता है और जो अपनी पोजीशन है वो क्लियर करता रहता है और बैंक्स को ये कहता है कि वो उसको कोऑपरेट करें जो सेंट्रल बैंक की क्रेडिट से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं। मॉरल सुएशन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ये क्रेडिट कंट्रोल की पॉलिसीज़ को प्रभावित करता है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। अंडर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स द आरबीआई gives directions to other banks to give or not to give credit for certain purposes to particular sectors. This method can be applied in both positive and negative manner. In positive manner, it means using measures to channelize credit to priority sectors. The priority sector includes small scale industry, agriculture, exports, etc. In negative manner, it means using measures to restrict flow of credit to particular sectors. Selective credit control के द्वारा आरबीआई डायरेक्शंस देता है अदर बैंक्स को कि उनको किस पर्पस के लिए लोन किसी पर्टिकुलर सेक्टर को देना है या नहीं देना है। ये मेथड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप में काम करता है। पॉजिटिव मैनर में इसका अर्थ है कि वो तरीके अपनाने हैं जिससे कि प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन्स बढ़ाने हैं। जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उसमें आती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आती हैं, एग्रीकल्चर आता है, एक्सपोर्ट्स आते हैं। और नेगेटिव मैनर में इसका मीनिंग है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जिनको जो लोन्स हैं वो रेस्ट्रिक्ट करने हैं। नाउ आवर टॉपिक इज क्रेडिट क्रिएशन or deposit creation or money creation by the banks. Deposit creation is determined by the amount of initial or fresh deposits. Second, the legal reserve ratio, that is the minimum ratio of deposit legally required to be kept as cash or in liquid form with banks. It is assumed that
all the money that goes out of banks is redeposited into the banks and the LRR consists of SLR decided by RBI. क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन जिसको हम कहते हैं वो दो बातों पर डिपेंड करता है कि इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट्स कितने हैं बैंक के पास, और दूसरा लीगल रिजर्व रेशो क्या है। लीगल रिजर्व रेशो वो मिनिमम रेशो होता है जो कि बैंक्स को अपने पास लीगली रखना पड़ता है कैश के रूप में या असेट्स के रूप में। ये एज्यूम इसमें हम एक एजम्पशन के ऊपर ये वर्क करते हैं कि जो भी पैसा बैंक के पास बैंक से जाता है वो दोबारा से री डिपॉजिट बैंक में आ जाता है। यहाँ पर हम LRR जो कंसिस्ट कर रहा है वो SLR से संबंधित है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से। लेट द LRR बी 20% and there is a fresh deposit of rupees 10,000 as required. The banks keep 20%, that is cash. Suppose the banks lend the remaining rupees 8,000. Those who borrow use this money for making payment. Those who receive payment put the money back into the banks. In this way, bank receives fresh deposits of the bank, again keep 20%, that is rupees 1,600, which is also 80% of the last deposits. The money back to the banks leading to a fresh deposit rupees 64,000. The money goes on multiplying in this way. This process of new deposit becomes nil and ultimately total money creation is rupees 50,000. Total money creation is equal to initial deposits multiplied by 1 upon LRR. In this case, our initial deposits are 10,000 multiplied by 1 upon 20%. It works out to be 50,000. तो मनी क्रिएशन को हम ऐसे समझाते हैं कि मनी क्रिएशन का मतलब होता है कि बैंक के पास जितने पैसे हैं उससे कई गुना ज़्यादा बैंक लोन देता है। ये दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम पहले बात करें फ्रेश डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट की, और दूसरी बात है SLR की, LRR की। तो इस केस में हम ये एग्जांपल ले रहे हैं कि एक बैंक के पास जो फ्रेश डिपॉजिट है या प्राइमरी डिपॉजिट है वो 10,000 है और लीगल रिजर्व रेशो है 20%। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 रुपये में से बैंक 20% अपने पास रखेगा और 8,000 वो लोन दे देगा। तो बैंक ने 10,000 का 20% अपने पास रखा, 2,000 रुपीज़ अपने पास रखे और 8,000 बोरोवर को लोन दे दिया। अब हमने ये एजम्पशन मानी है कि जो 8,000 लोन दिया है वो दोबारा से बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। अब सेकंड राउंड में क्या होगा, 8,000 बैंक के पास दोबारा आएंगे। तो बैंक 8,000 का फिर 20% अपने पास रखेगा, यानी कि 1,600 अपने पास रखेगा और 6,400 रुपीज़ वो लोन दे देगा। और ये प्रोसेस फिर दोबारा से 6,400 रुपीज़ बैंक के प्राइमरी डिपॉजिट बन जाएंगे। फिर अगेन उसका 20% रखा जाएगा और बाकी का लोन दिया जाएगा। ये जो सर्कल है ये लगातार चलता रहेगा जब तक कि एंड में वो नील ना हो जाए। तो एक बैंक ने कितने मनी को क्रिएट करा, इसके लिए हम फॉर्मूला देखते हैं। वो है इनिशियल डिपॉजिट को मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन LRR से। तो जब हम 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 20% से तो हमारे पास आ जाएगा 50,000। इसको आप इस टेबल की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो टेबल में जैसे पहले आपने देखना बैंक ABCD ये ऐसे आपने LMN जितना भी आगे तक करते रहिए। मान लीजिए इनिशियल डिपॉजिट फर्स्ट राउंड में 10,000 है, लीगल रिजर्व रेशो 20% है तो 2,000 बैंक ने अपने पास रखे, 8,000 उसने लोन दे दिए। जब पैसे पहली बार आते हैं वो इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट कहलाते हैं। जब वो दूसरे को लोन दे दिए जाते हैं तो वो सेकेंडरी डिपॉजिट बन जाते हैं, लेंडिंग बन के। अब सेकेंड राउंड में फिर 8,000 आए, उसका फिर बैंक ने 20% रखा, 1,600 और 6,400 जो लोन दे दिए। इस वे से ये वर्क करता रहेगा। तो जो मनी मल्टीप्लायर है वो होता है 1 अपॉन LRR। तो 1 अपॉन 20% मतलब 5 टाइम्स। तो जो ये इट इज़ अ मल्टीपल बाय विच टोटल डिपॉजिट इंक्रीज ड्यू टू इनिशियल डिपॉजिट। तो हमने देखा कि बैंक के पास जो पैसे थे
वो तो सिर्फ 10,000 रुपीज़ थे, लेकिन उसने जो लोन्स की क्रिएशन 50,000 के इक्वल कर दी। मीन्स उसे